Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Noor. Today I am going to teach you about matrices and determinant. This topic is from class 9th mathematics book chapter number 1 and we will do exercise number 1.1 today. स्टार्ट में बच्चों मैं आपको कुछ important definitions बताऊंगी. First definition is related to matrices. Matrices is plural of matrix. What is a matrix? Matrix is a rectangular array of a collection of real numbers. Rectangular array means it is a rectangular form of arrangement of collection of real numbers. When we collect different real numbers in the arrangement of a rectangular shape, it becomes a matrix, and those real numbers are 0, 1, 2, 3, and there can be negative numbers as well. When we arrange these numbers like 2, 0, 5, 4, 1, 3, this is a rectangular arrangement. ठीक है. और then enclosed by brackets. इन रेक्टेंगुलर नंबर्स को हम जब ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बन जाता है मैट्रिक्स. मैट्रिसेस आर नेम्ड by capital letters of alphabets. For example, I have written here A. जब हम इस मैट्रिक को एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे और उसका नेम A लिखेंगे तो ये एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगी. ठीक है. उसके बाद बारी आती है कि ये जो मैट्रिसेस हमने इस फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि नंबर्स हमने डिस्टेंस लेकर लिखे हैं. तो जब हम इन नंबर्स को डिस्टेंस लेकर लिखते हैं तो उनमें कुछ रोज़ और कॉलम्स बनते हैं. नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिसेस. लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स B and B is equal to 1, 2, 0, 3, 5, 7, like this. Now children, in this we have first row and we represent it by R1, and this is second row and it is termed as RB. तो ये जो बच्चों मैंने मैट्रिक्स लिखा है इसमें 2 रोज़ हैं. 1, 2, 0 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं और सेकंड रो में 3, 5 और 7 एंट्रीज हैं. नेक्स्ट इट कम्स कॉलम्स. अब कॉलम्स किस तरह से चेक किए जाते हैं मैट्रिसेस के. मैट्रिक्स कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें. सी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं और सी मैट्रिक्स में हम लिखते हैं 2, 0, 3. आप चाहे कॉलम की फॉर्म में लिखें चाहे रो की फॉर्म में लिखें. 3, 1, 2, 5, -1, 1. इस मैट्रिक्स में बच्चों हमने कॉलम्स चेक करने हैं और कॉलम्स होते हैं वर्टिकली. दैट मीन्स फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स जो लाइंस होंगी वो इसके कॉलम्स होंगे. फॉर एग्जांपल, in this matrix we start from 2 to 3 upwards to downwards. This is column 1, first column of the matrix. C2, this is second column of the matrix, and C3, this is third column of the matrix. Now students, in these two matrices you have seen that how do we check the rows and columns of the matrices. Rows are from left to right and columns are from upwards to downwards, vertically counted. After rows and columns, we will check the order of a matrix. What is order of a matrix? Order of a matrix. When we have any matrix M,
-7 1 3 0 -2 6. I have written a matrix in which a few entries are negative and a few are positive. In this matrix, number of rows are 2. Number of rows in this matrix are represented by small m and it is equal to 1 2. यहाँ पर 2 rows हैं and then number of columns, इसमें बच्चों columns भी चेक करेंगे and number of columns are represented by small n और columns हम देखते हैं इसमें कितने हैं 1 2 3 columns हैं इस मैट्रिक्स के। इस तरह से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बनाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का नेम है M, तो वी विल राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M इज इक्वल टू M बाय N। इसको इस तरह से लिखा जाता है M बाय N। तो M बाय N इज बच्चों ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। M की वैल्यू है 2, नंबर ऑफ रोज बाय N की वैल्यू है 3। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स M बाय N। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो आपस में इक्वल होते हैं? बच्चों इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। वी हैव 2 कंडीशंस फॉर इक्वल मैट्रिसेस। व्हाट आर दोज 2 कंडीशंस? इट कम्स इक्वल मैट्रिसेस। नाउ व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस? इक्वल मैट्रिसेस अब हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं? इफ वी हैव 2 मैट्रिसेस A and B, 2 equal matrices, then it will be denoted by A is equal to B if and only if first condition for equal matrices is the order of the matrices is equal. The order of matrix A is equal to the order of matrix B. पहली कंडीशन ये है कि ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स के साथ ऑर्डर इक्वल हो। और ऑर्डर क्या है? अभी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। एंड इन सेकेंड कंडीशन वी हैव देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब बच्चों एंट्रीज क्या होती हैं? मैट्रिसेस के अंदर जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं वो उनकी एंट्रीज होती हैं। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी मैट्रिसेस में जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं वो इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट प्लेस पर नंबर लिखा हुआ है वो सेकंड मैट्रिक्स के भी फर्स्ट प्लेस पर वही नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स ए हैज़ वैल्यूज़ 1 3 -4 2 एंड बी हैज़ वैल्यूज़ 1 2 + 1 -4 and 4 - 2. Here you can see first entry is 1 in matrix B. First entry is 1. In second 3
सेकेंड एंट्री इज़ 3 एंड हियर 2 + 1 3। यहाँ पर थर्ड एंट्री -4 है और इसमें भी थर्ड एंट्री -4 है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 4 - 2 2 है। इस तरह से ये इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी इक्वल है। ए मैट्रिक्स 2x2 का है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, और बी मैट्रिक्स भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का है। देयरफॉर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर ऑल्सो इक्वल। Hence we can write A is equal to B। A और B दोनों इक्वल हैं क्योंकि इनका ऑर्डर और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज दोनों आपस में इक्वल हैं।